غریبی نے روکا ہے اب تک راستہ، ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ۔ غریبی نے روکا ہے اب تک راستہ، ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ۔ غریبی نے روکا ہے اب تک راستہ، ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ، ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ۔ میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے، میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے، مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے، میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے، مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی ذکر چھیڑو نہ خلد بری کا، وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے۔ درود پڑھیں اللہم صلی اللہ الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسہ سجانے والوں، آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، مجھے وہ منصب عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا نام اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا ہے جب تک میں عبد القادر نہ چاہوں۔ تو گویا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پسند فرما لیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہیں کہ یہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، ہم لوگ سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی قبول فرما لے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھنے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ سرکار محفل کو سجانے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولیوں میں اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں عطا فرمایا ہے، وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو ولیوں میں عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو سجانے والوں، آپ کے ذکر کو سننے آنے والوں، ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قادری بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غوث ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایسا ولی سرکار غوث اعظم جیسا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں فرمایا ہے، جو ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں عبد القادر
कादिर के नाम से हमें अता फरमाया है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम वो है मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, ऐ अब्दुल कादिर, जब आप जवानी के आलम में थे या आप जब शोहरत पा गए थे, उस वक्त सरकार गौसे आजम से पूछा गया, ऐ अब्दुल कादिर, आपको ये कब पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको विलायत का मनसब अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको विलायत का मकाम अता फरमाया है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरी माँ के शिकम के अंदर विलायत का मनसब अता फरमा दिया था, लेकिन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुझे ये बात उस वक्त मालूम चली कि जब मैं मदरसे कादरिया में पढ़ने के लिए जाता था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कोई निदा देता था, पुकारने वाला कहता था, ऐ लोगों खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आवाज मैं भी सुनता था, मेरे तमाम साथी भी सुनते थे और मेरे असातिज़ा भी सुनते थे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मेरे साथ यही मामला हुआ। जब भी मैं मदरसे में जाता था, एक पुकारने वाला कहता था, ऐ लोगों खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आने वालों, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र को सुनने वालों, हमें नाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर जैसा वली हमें अता फरमाया है। क्या शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, क्या शान है अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम अता फरमाया है। आपके बारे में एक रिवायत है, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरी छोटी सी उम्र थी, अभी मैं पढ़ने लिखने की उम्र में था, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे कस्बे जिलान से एक काफिला जब मैंने सुना कि वो शहर मक्का जा रहा है, खाने काबा का तवाफ करने जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक का दीदार करने के लिए जा रहा है, आप दौड़े दौड़े अपनी माँ की बारगाह में आए और आने के बाद में सलाम अर्ज किया, अर्ज की, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी माँ, मैं खाना काबा का तवाफ करना चाहता हूँ, नाना के रोजे का दीदार करना चाहता हूँ। आपकी माँ कहती है, अभी तेरी उम्र छोटी है, अभी तू कम सिन है, अभी तेरी कम उम्र है, ऐ मेरे बेटे अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, ऐ मेरे बेटे जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू जरूर खाने काबा का तवाफ करना, जरूर नाना के रोजे का दीदार करना। हजरत अब्दुल कादिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया। मेरी माँ ने इजाजत ना दी, सिर्फ इस वजह से कि मेरी उम्र पढ़ने लिखने की थी, सिर्फ इस वजह से कि मेरी उस वक्त उम्र जो है मैं मदरसे में ज़ेरे तालीम था, यानी कि मैं पढ़ने जाता था। आज हम अपने घर का मुहासबा करके देखें, हमारे माँ बाप कितनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई लिखाई की तरफ कितनी तवज्जो देते हैं। जब बात आती है दीनी तालीम की, जब बात आती है शरीयत की तालीम की, जब बात आती है शरीयत का इल्म हासिल करने की, तब तो हमारे माँ बाप खामोश रहते हैं। कभी मस्जिद या मदरसे में बच्चों को कायदा लेकर भेज दिया तो भेज दिया, और जब बात आती है स्कूल में पढ़ने की, तब हमारे माँ बाप सुबह सुबह बेदार हो जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह सुबह बेदार होते हैं, उन्हें तैयार कराते हैं, उनका मुंह धुलाते हैं, उनकी ड्रेस पहनाते हैं, उनका बस्ता देते हैं, जो वो किताबें लेकर अपने स्कूल जाते हैं। ऐ दुनिया की तालीम को, ऐ दुनिया की तालीम को ज़ौक़ देने वालों, ऐ दुनिया की तालीम को आगे रखने वालों, दुनिया की तालीम जरूरी है, लेकिन पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। सारी पढ़ाई बाद में है, सबसे पहले किसी का हासिल कराना है वो अल्लाह के कलाम कुरान पाक का कराना है। मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते गौसे आज़म, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी माँ ने सिर्फ इस वजह से मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं अभी तालीम हासिल कर रहा था, अभी मैं छोटी सी उम्र में अपने ही कस्बे के अंदर मैं तालीम हासिल कर रहा था, मैं पढ़ने जा रहा था, मेरी छुट्टियां हो जाती, मेरी माँ कहती बेटे अभी ना जा, अभी तेरी छोटी सी उम्र है, अभी तू इल्म हासिल कर रहा है, अभी तू मदरसे में जाता है,
सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो दिन भी आ गया कि जिस दिन काफिला हमारे यहाँ से रवाना होने वाला था शहर मक्का की तरफ, वो काफिला जो है जाने वाला था। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब तक वो हमारे महल्ले से, हमारी गली से निकलता रहा, मैं अपने दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ उस काफिले को हसरत भरी निगाहों से देखता रहा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जैसे जैसे वो दूर गया मैं दौड़कर छत पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद में मैं काफिले वालों को देखता रहा, मैं देखता रहा, हसरत भरी निगाहों से मैं काफिले को जाते हुए देखता रहा और मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा था ये काफिला अब जाएगा, खाने काबा को देखेगा, ये हजरे अस्वद को चूमेगा, ये सफा मरवा की दौड़ लगाएंगे, ये नाना के रोजे का दीदार करेंगे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं हसरत भरी निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक जो है वो मुझे काफिला मेरी आंखों से ओझल हो गया, अब वो काफिला मुझे नजर नहीं आ रहा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं धूल उड़ती रही, मैं सिर्फ उसी धूल को देखता रहा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जैसे ही वो धूल भी मुझे दिखना बंद हो गई, अब सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे काबे की मोहब्बत ने, नाना जान के रोजे की मोहब्बत ने जब मुझे रुलाया है, जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकले हैं और मेरे रुखसार पर, मेरे गाल मुबारक पर जैसे मेरी आंख से निकलकर आंसू आए हैं, मैंने क्या देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाब के पर्दे हटा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो खाने काबा का तवाफ करने के लिए काफिला जा रहा था, वो खाने काबा जो है, वो काबा मुअज़्ज़मा जो है, वो काबा शरीफ जो है मेरी आंखों के सामने मौजूद था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं दंग रह गया कि जो खाने काबा अरब की धरती पर है आज वो मेरी आंखों के सामने कैसा नजर आ रहा है। जब ये रिवायत बरेली शरीफ पहुंची, बरेली का मुजद्दिद पुकार उठा, अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला हक है, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम अता फरमाया है मुसलमानों कि अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए काबे की मोहब्बत में, नाना जान के रोजे के दीदार की मोहब्बत में, तो अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल कादिर की आंखों से सारे पर्दे हटा देता है और जो अरब के अंदर मौजूद है खाने काबा, वो अब्दुल कादिर को कस्बे जिलाल से बैठे बैठे खाने काबा का दीदार कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हमें इसी तरीके से हमारे दिल के अंदर कायम रखे और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में हर साल जो है सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में हमें 11वीं शरीफ मनाने की अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खैरात अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अता फरमाए। चूँकि फहरिस्त बहुत लंबी है और मेरा गुमान है सारे ही मेहमान आ चुके हैं, अब आप जो अपने बाहर के आने वाले मेहमानों को सुनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हजरत ने गुफ्तगू की। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाम जिस शेर में आया तेरा शाह